کہانی کا آغاز ایک بہت بڑے بحری جہاز سے ہوتا ہے جو بحر الکاہل کے عین وسط میں موجود ہے۔ جہاز پر کل 600 مسافر سوار ہیں جو نیویارک جا رہے ہیں۔ جہاز پر ایک شاندار محفل جمی ہے جہاں ایک خوبصورت گلوکارہ اپنی آواز کا جادو جگا رہی ہے اور سب لوگ رقص و سرور میں مگن ہیں۔ جہاز پر موجود ہر شخص خوشی سے نہال ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ چند ہی منٹوں میں کیا ہولناک آفت آنے والی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انجن روم میں ایک شخص ایک بڑا ہینڈل اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہینڈل اوپر ہوتا ہے، ایک تیز دھار تار کھینچتی ہے اور لمحوں میں ڈیک پر موجود تمام لوگوں کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیتی ہے۔ ہر طرف خون ہی خون پھیل جاتا ہے اور لاشوں کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی بچی بچ جاتی ہے کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا اور وہ تیز دھار تار اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ پھر کہانی 40 سال آگے بڑھ جاتی ہے جہاں ایک ٹیم اپنی چھوٹی کشتی کے ذریعے ایک پرانے بحری جہاز کو کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اچانک وہ پرانا جہاز ڈوبنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ٹیم کا سربراہ اپنی ایک لڑکی کو اس تار کو کھولنے کے لیے بھیجتا ہے جس نے جہاز کو جکڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ پرانا جہاز ڈوبا تو ان کی اپنی کشتی بھی ساتھ ہی ڈوب جائے گی۔ جب وہ لڑکی جہاز کے نچلے حصے میں پہنچتی ہے تو اسے ایک بڑا سوراخ نظر آتا ہے جہاں سے پانی تیزی سے اندر آ رہا ہوتا ہے اور جہاز چند منٹوں میں ڈوبنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سربراہ کو مطلع کرتی ہے تو سربراہ اسے تار چھوڑ کر فوری واپس آنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس جہاز کو ڈھونڈنے میں انہیں 3 مہینے لگے تھے، اس لیے وہ لڑکی اتنی آسانی سے ہار ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ جہاز کو بچانے کے لیے پانی میں کود جاتی ہے اور اس کے باقی 2 ساتھی بھی اوزار لے کر پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ وہ سب مل کر جہاز کے سوراخوں کو ویلڈنگ کر کے بند کر دیتے ہیں اور اسے ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں۔ بعد میں وہ اس جہاز کو بازار میں بیچ کر بہت بڑی رقم کماتے ہیں جسے ان کا سربراہ سب میں برابر بانٹ دیتا ہے۔ ایک شخص کچھ دیر سے دور کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سمندر میں کھوئے ہوئے جہاز ڈھونڈ کر اور انہیں بیچ کر پیسہ کماتے ہیں۔ وہ شخص ان کے پاس آتا ہے اور ان کے سربراہ کو ایک ایسے جہاز کے بارے میں بتاتا ہے جو کسی خزانے کی طرح چھپا ہوا ہے۔ وہ شخص اصل میں اسی جہاز کا ذکر کر رہا تھا جو 40 سال پہلے غائب ہو گیا تھا، وہی جہاز جہاں ایک نامعلوم شخص نے ہینڈل اٹھا کر سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے بھی اس غائب شدہ جہاز کا نام سن رکھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے ڈھونڈا لیکن کوئی بھی اسے تلاش نہیں کر سکا۔ وہ اجنبی شخص کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ جہاز کہاں ہے، اگر ہم اسے واپس لے آئیں تو راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ پیسے کا سن کر ٹیم کے تمام لوگ اس مہم کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے ہی دن وہ اپنی کشتی پر اس جہاز کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ سمندر کے ایک سنسان حصے میں پہنچتے ہیں۔ ٹیم کا ایک رکن قریبی جہاز سے سگنل وصول کرتا ہے۔ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ 40 سال پہلے کھو جانے والا جہاز آس پاس ہی ہے۔ تھوڑی ہی دوری پر انہیں ایک بہت بڑا بحری جہاز نظر آتا ہے۔ یہ وہی جہاز تھا جو کہانی کے آغاز میں دکھایا گیا تھا اور پچھلی 4 دہائیوں سے غائب تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسے بیچ کر وہ مالا مال ہو جائیں گے۔ ٹیم کا سربراہ اپنے 2 آدمیوں کو کشتی پر رہنے کا کہتا ہے اور خود چند ساتھیوں کے ساتھ جہاز کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر پہنچ کر انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے جو انہیں چونکا دیتی ہے۔ سربراہ سب کو آگے بڑھنے کا کہتا ہے۔ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک بڑی گھڑی کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ گھڑی کی سوئیاں اب بھی چل رہی ہیں، لیکن چند لمحوں بعد وہ سوئیاں اچانک رک جاتی ہیں۔ یہ بات انہیں بہت عجیب لگتی ہے۔ وہ جہاز کی تلاشی جاری رکھتے ہیں جہاں ہر طرف ملبہ اور زن آلود لوہا بکھرا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں ان کا ایک ساتھی ٹوٹے ہوئے فرش سے نیچے گرنے لگتا ہے، لیکن وہ لڑکی اسے وقت پر پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ اسے اوپر کھینچ رہی ہوتی ہے تو اسے نیچے ایک بچی نظر آتی ہے۔ یہ وہی بچی تھی جو اس حادثے میں زندہ بچ گئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ 40 سال گزرنے کے بعد بھی وہ بالکل اسی عمر کی دکھائی دے رہی تھی، جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس بچی کی روح تھی۔ جب وہ لڑکی دوبارہ نیچے دیکھتی ہے تو وہ روح غائب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ساتھی کو بحفاظت اوپر کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ لڑکی سمجھ نہیں پاتی کہ جو اس نے دیکھا وہ حقیقت تھا اس کا وہم، تاہم وہ شدید خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ جہاز بہت بڑا تھا اس لیے وہ اپنی تلاش جاری رکھتے ہیں اور آخر کار بڑے کمرے میں پہنچتے ہیں۔ تلاشی کے دوران انہیں ایک جدید ڈیجیٹل گھڑی ملتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ 40 سال پہلے ایسی گھڑیاں وجود ہی نہیں رکھتی تھیں۔ اس سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان سے پہلے بھی کوئی اس جہاز پر آ چکا ہے۔ وہ اپنی کشتی پر واپس آ جاتے ہیں اور سربراہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگلے دن وہ اس جہاز کو اپنی کشتی سے باندھ کر کھینچ لے جائیں گے۔ اگلی صبح انہیں جہاز میں ایک بڑا سوراخ ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ سربراہ کہتا ہے کہ اس حالت میں جہاز کو ہلانا ناممکن ہے کیونکہ اندر بہت زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے جس سے اس کا وزن بڑھ گیا ہے۔ وہ پہلے سوراخ کو بند کرنے اور پھر پمپ کے ذریعے پانی باہر نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سب اس منصوبے پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ سوراخ کی مرمت کرتے ہیں جبکہ باقی اندر خزانے کی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ تلاشی کے دوران اس لڑکی کو ایک سوئمنگ پول ملتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ پول پر گولیوں کے نشانات ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے وہ روح ایک بار پھر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ خوف کے مارے وہ لڑکی پیچھے کی طرف پول میں گر جاتی ہے اور اس کا سر فرش سے زور سے ٹکراتا ہے جس سے خون بہنے لگتا ہے۔ وہ پول اس خون کو فوراً جذب کر لیتا ہے۔ جب لڑکی اوپر دیکھتی ہے تو وہ روح غائب ہوتی ہے اور وہ اجنبی شخص وہاں کھڑا ہوتا ہے جو اسے پول سے باہر نکالتا ہے۔ باہر آ کر لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس نے ابھی یہاں ایک بچی کو دیکھا جو اچانک غائب ہو گئی۔ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہوگا، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ پورا پول خون سے بھر جاتا ہے۔ دوسری طرف ٹیم کا سربراہ جہاز کے کپتان کے کمرے میں پہنچتا ہے جو بہت بری حالت میں ہوتا ہے۔ تلاشی کے دوران اسے کچھ خاص نہیں ملتا، لیکن میز پر اسے شراب کی ایک بوتل اور بھرا ہوا گلاس ملتا ہے جیسے کوئی ابھی وہاں پی رہا ہو۔ جیسے ہی وہ گلاس اٹھانے لگتا ہے اسے آئینے میں اپنے پیچھے جہاز کے پرانے کپتان کا بھوت نظر آتا ہے۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ جہاز پر موجود ہر شخص کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں۔
उनका एक साथी एक औरत के गाने की आवाज सुनता है और उसका पीछा करते हुए निचले हिस्से में पहुंच जाता है जहां वही पुरानी गुलकारा परफॉर्म कर रही होती है। इसी दौरान वो लड़की और वो अजनबी शख्स आगे बढ़ते हुए कपड़े धोने वाले कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वहां से पानी की एक बहुत बड़ी लहर निकलती है जिसमें कई लोगों की लाशें बह रही होती हैं। खौफजदा होकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो एक कमरे का दरवाजा खुद बखुद खिलता है जहां एक कीमती गाड़ी खड़ी होती है। वो शख्स इसे देखकर खुश होता है लेकिन लड़की को बेचैनी महसूस होती है। अचानक उन्हें दूसरे कमरे में कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। जब वो सामान हटाते हैं तो वहां सोने से भरा हुआ एक बिक्से देखकर दंग रह जाते हैं। लड़की बाकी सबको भी बिला लेती है। वहां सोने की ईंटों से भरे 9 बक्से मौजूद होते हैं। इस खजाने को देखकर पूरी टीम खुशी से पागल हो जाती है कि वो रातों रात अमीर हो गए। वो फैसला करते हैं कि वो अब जहाज को यहीं छोड़ देंगे और सिर्फ सोना अपनी कुश्ती पर लाद कर निकल जाएंगे। कुश्ती का कप्तान इंजन शुरू करने के लिए इसकी सफाई कर रहा होता है लेकिन कुश्ती का एक वाल्व खुद बखुद खिल जाता है और हवा में गैस लीक होने लगती है। दूसरी तरफ वो लड़की एक बार फिर इस रू को अपनी तरफ भागते हुए देखती है जैसे वो इसे खबरदार कर रही हो लेकिन तभी कोई इस रू को पकड़कर नीचे खींच लेता है। इसी लम्हे कुश्ती का कप्तान इंजन से टॉट करता है और गैस के इखराज की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे उनकी कुश्ती पूरी तरह तबाह हो जाती है और कप्तान मौके पर ही मारा जाता है। अब वो सब समंदर के बीचों बीच एक लावारिस जहाज पर फंस चुके हैं और उनकी फरार होने वाली इकलौती कुश्ती तबाह हो चुकी है। उनका एक साथी अपनी मंगेतर की तस्वीर देखकर जज्बाती हो जाता है क्योंकि 2 हफ्तों बाद इसकी शादी थी और अब इसे लगता है कि वो यहां से कभी जिंदा नहीं निकल पाएगा। वो मायूसी में जहाज पर रखी पुरानी शराब पीना शुरू कर देता है। वो लड़की इस बात से परेशान थी कि इसे बार बार वो बच्ची क्यों दिखाई दे रही है। जवाबात तलाश करने के लिए वो मुसाफिरों का रिकॉर्ड चेक करती है तो इसे मालूम होता है कि इस बच्ची का नाम केटी था। वो इस बच्ची के कमरे में जाती है और अलमारी का दरवाजा खोलती है तो इसे वहां इसकी लाश मिलती है जिसे देखकर वो सहम जाती है। वो हिम्मत करके लाश के गिले से लॉकेट निकालती है जिसके अंदर इस बच्ची की अपने वालिदैन के साथ तस्वीर होती है। अचानक इस बच्ची की आवाज आती है कि लॉकेट बंद मत करो, मैं इतने सालों बाद अपने माँ बाप को देख रही हूँ। लड़की को यकीन नहीं आता कि वो एक मुर्दा बच्ची से बात कर रही है। जब वो लॉकेट इसे देने की कोशिश करती है तो इसका हाथ रू के आर पार गुजर जाता है। तब इसे यकीन होता है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक रूह है। वो रूह बताती है कि इस जहाज पर बहुत सी रूहें कैद हैं और वो तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक उन्हें काबू करने वाला शख्स मारा ना जाए। लड़की पूछती है कि वो शख्स कौन है। जैसे ही वो नाम बताने लगती है जहाज के फर्श पर अजीब और गरीब कीड़े मकोड़े रेंगने लगते हैं। वो रूह खौफजदा होकर लड़की को फौरन जहाज छोड़ने का कहती है और गायब हो जाती है। दूसरी तरफ उनका वो साथी शराब की पूरी बोतल खत्म करने के बाद चकरा रहा होता है कि अचानक आसपास की तमाम मेजें और कुर्सियां हिलने लगती है। एक ही लम्हे में सब कुछ ठीक हो जाता है और 40 साल पहले मरने वाले लोग दोबारा जिंदा दिखाई देते हैं। वो साथी उनके बीच खड़ा होता है और सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वो इसे शराब का असर समझता है। वही पुरानी गुलकारा इसके पास आती है और इसे अपने शहर में जकड़ लेती है। वो बगैर सोचे समझे इसके पीछे चल पड़ता है और इसे अंदाजा नहीं होता कि वो इसे एक जाल में ले जा रही है। वो गुलकारा एक टूटे हुए फर्श के किनारे खड़ी होकर इसे बुलाती है और जैसे ही वो आगे कदम बढ़ाता है नीचे गिरकर हलाक हो जाता है। फिर हम टीम के सरबराह को कप्तान के कमरे में देखते हैं जहां शराब की बोतल खुद बखुद हिलने लगती है और कप्तान का भूत इसके सामने आ जाता है। भूत इसे शराब पेश करता है और एक दूसरे बहरी जहाज की तस्वीर दिखाता है। कप्तान बताता है कि कई साल पहले एक शख्स उनके पास आया था और उसने उन्हें इस जहाज के बारे में बताया था जिसके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ था। जब उन्होंने इस जहाज को बचाया तो उन्हें वाकई वो खजाना मिल गया। कप्तान सरबराह को एक और तस्वीर दिखाता है और कहता है कि यह वही शख्स है जिसने हमें इस जहाज का बताया था। जब सरबराह इस तस्वीर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो तस्वीर इस अजनबी शख्स की थी जो उनके साथ आया था, लेकिन वो तस्वीर 40 साल पुरानी थी और वो शख्स आज भी बिल्कुल वैसा ही दुख रहा था। सरबराह समझ जाता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी रूह है। ये जानकर वो अपनी टीम को जहाज से निकालने के लिए पागलों की तरह अपने साथियों को ढूंढने लगता है। रास्ते में इसे अपने इसी साथी का भूत मिलता है जो कुश्ती के धमाके में मारा गया था और वो सरबराह पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सरबराह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। इसी वक्त वो लड़की वहां पहुंचती है तो वो भूत गायब हो जाता है, लेकिन सरबराह को इस लड़की का चेहरा भी इसी भूत जैसा दिखाई देता है। वो इसे भी रू समझकर इस पर हमला कर देता है। लड़की अपना दिफा करती है और सरबराह की टांग पर वार करती है, लेकिन वो दोबारा उठकर हमला करने लगता है। इससे पहले कि वो लड़की को नुकसान पहुंचाए, वो अजनबी शख्स पीछे से आकर लोहे की सलाख सरबराह के सर पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। पूरी टीम में से सिर्फ सरबराह को मालूम हुआ था कि वो अजनबी शख्स इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। इस शख्स को भी अंदाजा हो गया था कि इसका राज खिल चुका है। वो बाकी साथियों को गुमराह करता है और कहता है कि अगर सरबराह होश में आया तो वो सबको नुकसान पहुंचा सकता है। सब इसकी बात मान लेते हैं और अपने बेहोश सरबराह को पानी के एक बड़े टैंक में फेंक देते हैं। कोई और रास्ता न होने की वजह से बाकी अरकान मंसूबे के मुताबिक जहाज की मुरम्मत जारी रखते हैं और पानी बाहर निकालने लगते हैं। लड़की देखती है कि उनका एक साथी गायब है तो वो इसे ढूंढने निकलती है। वो रूह एक बार फिर जाहिर होती है और बताती है कि जिस शख्स को तुम ढूंढ रही हो वो मारा जा चुका है। वो इस गुलकारा के पीछे जाते हुए अपनी जान गंवा बैठा। वो रूह लड़की के कंधे पर हाथ रखती है और इसे माजी के इस हौलनाक वाक़ये में ले जाती है जब ये सब कुछ हुआ था। इस रात जहाज पर मौजूद तमाम मुसाफिरों को सोना लौटने की नीयत से बेरहमी से कत्ल किया गया था। किसी को जहर दिया गया, किसी को तार से काटा गया और बहुत से लोगों को गोलियां मार दी गईं। यहां तक कि इस छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया और इसे इसके कमरे में फांसी दे दी गई। इस सब के पीछे वो गुलकारा थी जिसने सोना चुराने का पूरा मंसूबा बनाया था और अपने आदमियों की मदद से सबको मरवा दिया था। जहाज का एक अफसर भी इसके साथ मिला हुआ था जिसने गुलकारा के इशारे पर अपने ही साथियों को मार दिया, लेकिन जब वो मुड़ा तो गुलकारा ने इसे भी गोली मार दी।
गुलुकारा समझती है कि अब सोना सिर्फ इसका है, लेकिन तभी वो असल मास्टर माइंड वहां आता है और इस गुलुकारा को लोहे की जंजीर से लटका कर मार देता है। लड़की इस रू की मदद से ये सब देखती है और उसका असल चेहरा देखकर दंग रह जाती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी था जो उन्हें सोने का लालच देकर यहां लाया था। जहाज टूटा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। इसे बचाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इसकी मरम्मत कर सकें, इसलिए वो चालाकी से उन्हें यहां लाया था। अब जब जहाज बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसे उनकी कोई जरूरत नहीं थी और वो इन सब से छुटकारा पाना चाहता था। ये जानकर लड़की को याद आता है कि इसने इस शख्स की बातों में आकर अपने सरबराह को टैंक में बंद कर दिया था। वो इसे बचाने भागती है, लेकिन जब तक वो पहुंचती है टैंक पानी से भर चुका होता है और सरबराह मर चुका होता है। वो टैंक का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत मजबूत होता है। फिर वो अपने आखिरी जिंदा साथी के पास जाती है और इसे इस शख्स का सच बताकर कहती है कि इसे देखते ही गोली मार देना। लड़की दूसरे साथी को ढूंढने निकलती है तो वो अजनबी शख्स उसके साथी के सामने आ जाता है। वो साथी इस पर बंदूक तान लेता है। इस शख्स को अंदाजा हो जाता है कि लड़की ने सच बता दिया है। वो बातों में लगाकर बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो साथी चालाकी भांप कर फौरन गोली चला देता है, जिससे वो शख्स पीछे जा गिरता है। वो साथी इसे मुर्दा समझकर वहां से चला जाता है, लेकिन वो शख्स अब भी जिंदा था। दूसरी तरफ लड़की को मालूम होता है कि इसका दूसरा साथी भी पानी में मर चुका है। अब इस लड़की और उसके साथी के अलावा सब खत्म हो चुके थे। लड़की फैसला करती है कि वो इस पूरे जहाज को तबाह कर देगी। वो जगह जगह धमाका खेज मवाद रखने लगती है। इसका साथी वहां आकर बताता है कि इसने इस शख्स को मार दिया है, लेकिन लड़की कहती है कि वो नहीं मरेगा क्योंकि वो इंसान नहीं शैतान है। हमें इस पूरे जहाज को उड़ाना होगा ताकि यह हमारी तरह और लोगों को ना पैसा सके और उसकी कैद में मौजूद तमाम रूहें आजाद हो जाएं। इसका साथी गुस्से में कहता है कि जहाज तबाह करने से सोना भी तबाह हो जाएगा और वो खाली हाथ घर लुटेंगे। लड़की कहती है कि ये सोना सिर्फ इसका एक धोखा है, वो इसे कभी नहीं ले जा सकेंगे। वो शख्स समझ जाता है कि लड़की नहीं मानेगी। वो अपनी असल शक्ल में आता है और बताता है कि वो इसके साथी को पहले ही मार चुका है। वो कहता है कि जैसे तुम पुराने जहाज इकट्ठे करती हो, मैं रूहें इकट्ठी करता हूं। मैं पहले इंसान था, लेकिन मेरे गुनाहों की वजह से मुझे ये सजा मिली और अब यही मेरा मकसद है। मुझे इसके लिए जहाज की जरूरत है, इसलिए इसे तबाह मत करो। वो लड़की को सौदाबाजी की पेशकश करता कि वो इसे जिंदा छोड़ देगा बशर्ते कि वो जहाज को तबाह न करे, लेकिन लड़की इनकार कर देती है। वो शख्स लोहे की सलाख से इसे जमीन पर गिरा देता है और जैसे ही इसे खत्म करने आगे बढ़ता है, लड़की बम के रिमोट पर तीर चला देती है और खुद पानी में कूद जाती है। रिमोट दबते ही जहाज पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा जहाज समंदर में डूबने लगता है। लड़की पानी के अंदर फंस जाती है और उसका सांस रुकने लगता है। तभी इस बच्ची की रूह आकर उसका हाथ पकड़ती है और इसे ऊपर की तरफ ले जाती है। लड़की देखती है कि इस शख्स की कैद में मौजूद तमाम रूहें आजाद हो रही है। इस जहाज पर मौजूद हर रूह इस शैतान की गुलाम बन चुकी थी। सिर्फ इस बच्ची की रूह पाक थी, इसलिए वो इस पर काबू नहीं पा सका था और इसीलिए वो लड़की की मदद कर रही थी। लड़की एक बक्से के सहारे समंदर में तैरती रहती है और आखिरकार एक गुजरता हुआ जहाज इसे बचा लेता है। जब इसे साहिल पर एम्बुलेंस की खिड़की से बाहर लाया जा रहा होता है तो वो एक इंतहाई इबरतनाक मंजर देखती है। वो अजनबी शख्स अब भी जिंदा था और वो सारा सोना एक नए बहरी जहाज पर लाद रहा था ताकि दोबारा यही खेल खेल सके, नए लोगों को लालच देकर लाए और सोने के बदले उनकी रूहें कैद करे। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।